Cyclic groups. Cyclic ग्रुप्स. क्या डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की? एक ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? अगर एक जी कोई ग्रुप है, उसमें कोई एक एलिमेंट है ए इन जी, सच दैट जी का हर एक एलिमेंट ए का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक इंटीग्रल पावर में लिखा जा सके, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक. एक ग्रुप जी, एक ग्रुप जी is called cyclic group. Cyclic group if each element of G, if each element of G can be expressed as, yeah, if there exists an element A in G, if there exists an element A in G such that each element of G can be expressed as an integral power of A, an integral power of A. For example, G is group having these elements 1, -1, iota, and negative iota. This is G, and this is group. Clearly, this group is this set is group under multiplication. Since each element of G, I is element of G, I यहाँ G का element है, और I raised to power 1 is equal to I raised to power 2 is equal to -1, I raised to power 3 equals to I raised to power 4 is equal to 1. Each element of G can be expressed as an integral power of I. Therefore, G is cyclic group generated by I. Therefore, G is cyclic group generated by I. In this way, इसका मीनिंग हुआ. क्या आपको ये समझ आई बात कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं हम लोग? ये समझ आई है या नहीं आई? यस. ओके, सो आगे बढ़ते. If G is cyclic group, then it can be expressed in this way.
Another example for cyclic group is what? Let G be the set 1 omega square, and it is well known to you this set is a group under multiplication. This set is group. Let G is equal to this, then G is group under multiplication. Under multiplication, G group होगा under multiplication. Now, is it a cyclic group? Say, since omega is equal to omega raised to 1 is equal to omega square equals to omega square, and omega cube is equal to 1. So each element of G means there exists some W, omega. So each element of G can be expressed as integral power of omega. So therefore G is cyclic group generated by omega. So in this way we can claim G is cyclic group generated by omega. Is that clear? Because each element of G is an integral power of omega. Reason is very much clear, because each element of G is an integral power of omega. हर एक एलिमेंट को हमने इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा लिख दिया. सो अगर ऐसा हो गया तो G इज इंटीग्रल साइक्लिक ग्रुप. अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहली थ्योरम आई थी, show that G is an abelian group. Every cyclic group is abelian. तो इसको प्रूफ करेंगे. तो एवरी साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन प्रूफ करना जा रहा है. show that every cyclic group is abelian. Every cyclic group is abelian. ये शो करो कि हर साइक्लिक ग्रुप abelian है. Show that every cyclic group is abelian. So let us prove. ग्रुप ले लेते हैं एक G और उसमें कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं. ग्रुप है तो उसमें सिर्फ एक ही बात और बतानी है कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ है. कोई भी ग्रुप अगर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो अबेलियन हो जाएगा. तो लेट कर लेते हैं कि G कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय सम कुछ एलिमेंट है. कुछ भी रख सकते हैं, सम A या B या C, कुछ भी. हर साइक्लिक ग्रुप किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा. अभी जो डेफिनेशन लिखी आपने कि G अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो देन देयर एक्सिस्ट सम एलिमेंट A in G such that each element of G can be expressed as integral power of A. तो हम वैसे ही लेके चलते हैं. Let G be a cyclic. Let G be a cyclic group जनरेटेड बाय, जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा. यानी जनरेट होने का मतलब हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे तमाम G के एलिमेंट इंटीग्रल पावर लिखे जा सकते हैं. लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A. लेट X, Y be any two elements of G. If X and Y are elements of G, then each element of G can be expressed as G cyclic है.
तो साइक्लिक की डेफिनेशन बताओ, ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए, so x can be expressed as integral power of a, that is a raised to power n, and y can be expressed as a raised to another integer, say m, where n and m are integers, where n comma m belongs to z, ये इंटीग्रल पावर है, तो ये ऑब्वियसली सम इंटीजर। नाउ x और y का प्रोडक्ट करें और वो y x के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। x की वैल्यू है a रेज़ टू पावर n, y की वैल्यू है a रेज़ टू पावर n। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं कि जब बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, सो दिस थिंग इज इक्वल टू n प्लस n। और हम ये भी जानते हैं एडिशन में a रेज़ टू पावर n प्लस m इज सेम एज m प्लस n, क्योंकि इंटीजर्स तो कॉमोटेटिव होते हैं। अगर इंटीजर्स कॉमोटेटिव हैं तो फिर हमें इससे क्या पता चला, इंटीजर्स कॉमोटेटिव हैं तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। इस रिजल्ट पे हम पहुंच जाएंगे कि ऑब्वियसली हम इसको एक्स वाई जो इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n प्लस m लिखा था उसको m प्लस n लिख सकते हैं वापस, क्योंकि m और n दोनों इंटीजर थे, इंटीजर तो कॉमोटेटिव होते हैं। सो दिस थिंग इज सेम एज a रेज़ टू पावर m टाइम्स a रेज़ टू पावर n, और a रेज़ टू पावर m इज व्हाट, y, और a रेज़ टू पावर n इज व्हाट, x। x y y x इक्वल हो गए। अगर x y y x के इक्वल होगा तो देयरफॉर g इज अबेलियन, देयरफॉर g इज abelian group, g is abelian group। in this way g abelian group हो गया, hence the proof। next, give two examples of abelian groups which are not cyclic। हमें दो एग्जांपल्स देनी है, दो दो तीन दो को ऐसे abelian ग्रुप्स के जो ग्रुप तो abelian हूं मगर साइक्लिक ना हो। तो ऐसा करके भी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल, हो सकता है या टू एग्जांपल हो सकता है। गिव, तो आप ऐसी एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल कर लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन abelian group, every cyclic group is abelian, इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए हमें काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट an abelian group may not be cyclic, एक ऐसी एग्जांपल दो, यानी कि इन शॉर्ट ये हुआ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट। तो एक ऐसी एग्जांपल दो जिससे ये कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट होने का प्रमाण मिले, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि अबेलियन ग्रुप हो मगर वो साइक्लिक ना हो। तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, लेट कर लेते हैं। लेट q under the operation of addition, q under the operation of addition be a group of rational numbers, be the group of rational numbers with the group of rational numbers under addition, तो देन क्या होगा, क्लियरली जो Q होगा वो अबेलियन होगा। देन
लेट कर लेते हैं ए कमा बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ क्यू, देन दिस इंप्लाइज a plus b is same as b plus a. So therefore, Q is an abelian group. An abelian group. Abelian group. Q तो abelian group था, commutative law है इसमें, तो abelian and addition, तो ये abelian group है. क्या ये cyclic group है? तो वो देखना चाहते हैं हम लोग. क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से हम लोग तमाम एलिमेंट जो हैं जनरेट कर लें इसके. लेट कर लेते हैं फॉर, इसको प्रूव करने के लिए साइक्लिक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से चलते हैं. फॉर सपोज दैट कोई x नाम का एलिमेंट Q में ले लेते हैं. x इज एलिमेंट ऑफ Q such that x generates Q. x generates, x मान लेते हैं Q का कोई एलिमेंट है वो जो जनरेट करता है. x generates Q. ये यहां से हटा के शब्द में नीचे करके लिख देता हूं ताकि देखे. such that x generates Q. मान लेते हैं x जनरेट करता है Q को. देन क्या होगा? देन देन क्या होने वाला है उस पर चलते हैं. अगर x जनरेट करता है Q को तो अगर x Q का एलिमेंट है, नो x इज एलिमेंट ऑफ Q, नो x इज एलिमेंट ऑफ Q, सो दिस इंप्लॉइज x जो होगा वो किस फॉर्म का होगा? x जो है इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n की फॉर्म होगा, वेयर जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो रेशियो ऑफ इंटीजर्स होते हैं, वेयर mn बिलोंग्स टू z एंड n इज नॉट इक्वल टू 0. n 0 के बराबर नहीं होता है, x अगर है तो ऐसा होगा. लेट कर लेते हैं कि एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग से 1 डिवाइडेड बाई 3n. वो ऑब्वियसली कुछ भी ले सकते हो, ये बिलोंग करता है Q को. तो और लेट कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3n जो है वो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज k. इसको हम k बना के लिख सकते हैं. तो देन क्या होगा? देन खाली 1 डिवाइडेड बाई 3 जो होगा वो n और k का प्रोडक्ट हो जाएगा. n और k का प्रोडक्ट हो जाएगा. n भी क्या है आपके पास? लेट कर लेते हैं अगर 1 डिवाइडेड बाई n जो है वो k के बराबर है और k जो है वो सम इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर m बाई n के बराबर है. ये ऐसा भी ले सकते हैं k टाइम्स mn. इस तरह के से है सम. ये जो आपने x रखा था इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ. ये 1/3n जो है वो कोई एग्जैक्टली तो x जैसा नहीं है, वो तो x का k टाइम्स k को सॉरी x को k से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/3 बना, ऐसा होगा. तो खाली 1/3 क्या हो जाएगा? ये n k और x हो जाएगा, n k x. दिस थिंग इक्वल्स टू n k. x की वैल्यू क्या थी? m डिवाइडेड बाई n. m डिवाइडेड बाई n होगा तो n से n कट जाएगा. सो दिस इंप्लॉइज 1 डिवाइडेड बाई 3 जो होगा वो k टाइम्स m हो जाएगा. फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि x कोई रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली m बाई n की फॉर्म में होगा, वेयर mn बिलोंग्स टू z एंड n इज नॉट इक्वल टू q होगा. तो 1/3n भी तो कोई रैशनल नंबर है. तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैंने x जनरेटर रखा है तो ईच एलिमेंट कैन बी, ये एडिशन वाला ग्रुप है तो
ये के टाइम्स लिखा जाना चाहिए, एडिशन में पावर में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, के टाइम्स एक्स लिखा जाना चाहिए। तो फिर खाली 1/3 क्या होगा, एन से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया और एक्स की वैल्यू वापस लिखी तो m/n आना चाहिए, एन एन कैंसिल हो गया, फिर 1/3 के एम बनना चाहिए, 1/3 के एम बनना चाहिए। और के और एम जो है वो दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं और 1/3 इंटीजर नहीं। इन दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही रहना चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एज के इंटू एम इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, because k is integer, m is integer, so their product is integer, but 1 divided by 3 is not integer, not integer, ये मुमकिन नहीं है। therefore हम ये क्लेम कर सकते हैं, no element can act as generator of q, therefore no element can act as generator of q, generator of q। so जो हमारा रिजल्ट बना, ये कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू वाला रिजल्ट हम कंक्लूड करके, देयरफॉर ये जो Q है, जो हमने सेट लिया हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि अबेलियन तो था बट साइक्लिक नहीं है, देयरफॉर Q इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, Q इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। इन दिस वे हम लोग ने ये प्रूव कर लिया। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ आया भाई? हेलो, यस सर। कोई डाउट है इसमें? क्या था क्वेश्चन? sir. क्वेश्चन ये था कि ग्रुप अगर अबेलियन हो तो वो साइक्लिक पक्का होता है, एवरेज साइक्लिक सॉरी साइक्लिक हो तो अबेलियन पक्का होता है, अबेलियन हो तो साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। उसकी ये काउंटर एग्जांपल है, यानी जो हमारी थ्योरम थी मेन, एवरेज साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरेज साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ट्रू थी बात, बट कन्वर्स ट्रू नहीं था, उसके लिए काउंटर एग्जांपल ये। तो ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, वन एग्जांपल इज एनफ, कम से कम एक एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग ऑनलाइन को जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं आगे की।